سوات واقعے کے بعد اس کی گونج کم نہیں ہوئی ہے، سبھی اس بارے میں بات کر رہے ہیں اور پشاور ہائی کورٹ میں متعلقہ درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ اچھا یہ سنیے ذرا نادیہ، عدالت نے کمشنر مالاکنڈ اور متعلقہ افسران کو طلب کیا اور پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ اور جسٹس فہیم ولی نے درخواست پر سماعت کی۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کمشنر مالاکنڈ اور دیگر متعلقہ افسران ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ چیف جسٹس نے یہ سوالات کیے، استفسار کیے، یہ سوالات ہیں ان کے کہ سیاحوں کو بر وقت کیوں ریسکیو نہیں کیا گیا، بہت عام سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ سیاحوں کو ڈرون کے ذریعے حفاظتی جیکٹس کیوں نہیں دی گئی، یہ بھی انہوں نے سوال کیا۔ اچھا دریاؤ اور سیاحتی مقامات، جو آپ بات کر رہی تھی نا، دریاؤ اور سیاحتی مقامات کی دیکھ بھال کس کی ذمہ داری ہے؟ یعنی وہی جب فلڈنگ ہوگی یا ایک دم سے پانی کا پریشر بڑھے گا تو اس کا کوئی میکینزم بننا چاہیے نا، یہ بھی سوال وہاں پہ کیا گیا۔ ولنریبل ایریاز ہیں، ان میں کبھی بھی کوئی ایسی ایمرجنسی آ سکتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کیسے لوگوں کو نوٹیفائی کریں گے؟ کوئی سائرنز، میں تو وہ ایران تھی کہ بے سستے سے سائرنز ہوٹرز کچھ بھی نہیں تھا کہ جس سے آواز کر کے آپ سارے ایریا کو الرٹ کر دیتے کہ کچھ ہو رہا ہے تو وہ نکل آتے ہیں۔ تو یہ سوالات ہو رہے ہیں۔ اچھا ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے کہا کہ سوات میں تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا اور ایئر ایمبولنس موجود تھی، موجود تھی مگر وقت پر جو ہے نا وقت کم ہونے کے باعث استعمال نہ ہو سکی، وقت کم ہونے کے باعث 1.5 گھنٹہ کم ہو گیا۔ دور تھی کہ 1.5 گھنٹے میں ایئر ایمبولنس نہیں پہنچ سکی۔ جب ایک حادثہ ہوتا ہے تو منٹوں سیکنڈوں کی جو ہے نا جنگ ہوتی ہے، اس میں 1.5 گھنٹے میں بھی یہ نہیں پہنچ سکی تو اس کو آپ ریسکیو کہیں گے اور آپ یہ دیکھیں، آپ اس کو ایئر ایمبولنس کہیں گے؟ یہ مطلب چلو موجود نہ ہوتی، سائیکل آ جاتی ہے، چلو موجود نہ ہوتی، لیکن کمشنر یہ بتا رہے کہ تھی موجود تھی، او واو، کہاں تھی؟ لیکن نہیں ہو سکا، لیکن کہاں تھی؟ کہاں تھی؟ اچھا چند ہوٹلز کو گرایا گیا، ان کو توڑا گیا، ایک ڈرون خرید لیا ہے، اس کے علاوہ کوئی منصوبہ بندی نظر نہیں آئی ہے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد جلدی جلدی ہیپیزڈ وے میں 2-3 اقدامات کر لیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کا بھی غصہ کم ہو اور اس کے بعد پھر وہی جو کی تو صورت ہے۔ خیر پشاور ہائی کورٹ میں چل رہا معاملہ، یہ اچھی بات ہے کہ پشاور ہائی کورٹ بھی میک شور کرائے گا کہ آپ نے کیا ضروری اقدامات کرنے۔ اب ہمیں جوائن کیا ہے اسپوکس پرسن ہے KP 1122 کے، خیبر پختونخوا 1122 جو کہ ریسکیو آپریشن کرتی ہے، بلال فیضی صاحب نے۔ بلال صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بہت بڑے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں اور آپ کا ریسکیو کا ادارہ جس کا کام ہی ہے، جس کی ذمہ داری یہ ہے، 1.5 گھنٹے تک امداد کے منتظر رہے، کوئی امداد کو نہیں آیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں بھی یہ سوالات ہو رہے ہیں، ذرا بتائیے کیا ہوا یہ؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ دوسرا، جس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں کچھ جو ہے وہ حقیقتیں اس سے چینج ہیں، لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ دیکھیں کہ نہ صرف پنجاب بلکہ سب سے زیادہ جو ریزسٹنس آئی ہے اس کے خلاف وہ خیبر پختونخوا کے عوام کی ہے، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی ہے، جو سرکاری ادارے ہیں جس طرح آپ نے ہائی کورٹ کی بات کی ان کی طرف سے ہے۔ اور بنیادی سوالات یہی تھے کہ کیوں یہ آپریشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی یا اس قسم کا سانحہ جو ہے وہ کیوں سامنے آیا ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہیں، سب سے پہلے تو ہم اس کو کنڈیم بھی کریں گے، ہم اس کو جو ہے وہ بھی کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ اشکبار ہے اس سانحے پہ، اور اس سے قبل دیکھا جائے تو ریسکیو 1122 نے تقریباً 12 لاکھ سے مختلف ایمرجنسی کی ہیں، جس میں کوئی 20 لاکھ سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ ٹریٹ بھی کیا ہے۔ سر اس سے ہٹ کے وہ تو آپ نے کیا ہے کام، اس کو ہم اب اس سانحے کی ذرا ہم بات کرتے ہیں نا، اس پہ ہم سب حیران ہیں، پریشان ہیں۔ میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو سب سے پہلے یہ جس جگہ پہ یہ سانحہ ہوا ہے یہ کوئی پبلک سپاٹ جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں تھا۔ اس پہ 8 کے قریب یہ جو ہے وہ ٹورسٹ بس ہے، یہ آئی ہے ادھر اس جگہ پہ، یہاں پہ رکے ہیں، انہوں نے ناشتے وغیرہ کا آرڈر کیا ہے، پھر یہ لوگ جو ہے وہ کوئی 9 یہ سوات شہر سے کتنا دور تھا سر؟ مجھے بتائیں کتنے کلومیٹر تھا سوات شہر سے؟ یہ منگورا میں تھا، یہ منگورا سوات ہی ہے، یعنی یہ مطلب سینٹرل سوات، مطلب وہ مقام کتنی دور تھا، کتنے کلومیٹر ہوں گے اندازے کے مطابق؟ سینٹرل منگورا میں تھے، منگورا میں ہی تھے جی، منگورا میں ہے یہ سوات انٹری پوائنٹ جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے اس جگہ پہ۔ یہاں پہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی پکنک سپاٹ نہیں تھا، کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ وغیرہ نہیں تھی۔ نہیں، اگر کوئی گاڑی کے ذریعے آنا چاہے اس مقام پر پہنچنا چاہے، وہ جو آپ کے مرکز ہوتے ہیں یا جہاں ریسکیو کا ٹیمز بیٹھتی ہیں، فائر بریگیڈ کا ادارہ ہے، کتنی دیر میں پہنچ سکتا ہے؟ بات وہی ہے بلال صاحب کہ دیکھیں لوگ پھنس گئے، بات پکنک سپاٹ کی نہیں، کہیں بھی پھنس سکتے ہیں، سوات میں کسی جگہ بھی، کسی کونے نکڑ کہیں بھی بندہ ہم پھنس سکتے ہیں، ہمیں ریسکیو کون کرے گا؟ کیوں نہیں کیا؟ پلیز اس کا جواب دیں۔ جی میڈم، اس طرح ہے کہ
हमारा स्टेशन है सैदू शरीफ में। सैदू शरीफ से इस का फासला तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर का जो है वो बनता है। फर्स्ट जो कॉल हमारे मौसूल हुई है वो तकरीबन 9:49 पे जो है वो रेस्क्यू कंट्रोल को कॉल मौसूल हुई है। उसमें जो है वो मिस इंटरप्रिटेशन इस तरह हुई है कि कॉल के जरिए कहा गया कि रिलैक्स होटल के अंदर इमरजेंसी है, वहां पे लोग ट्रैप हैं, आप जल्दी से टीम भिजवाएं। तो नॉर्मली हमारी ये एक्सरसाइज है कि हम लोग जब भी ऐसी इमरजेंसी होती है और जिस तरह उन्होंने कहा कि होटल के अंदर है, तो हमारी एम्बुलेंस सबसे पहले जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल रिलेटेड इश्यूज हो, कुछ भी हो, तो वो जो है वो डिग आउट करेगी, वो जो है वो सर्विसेज फराहम करेगी। लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि जब हमारी टीम पहले पहुंची तकरीबन 12 से 15 मिनट के दौरान, उसकी वजह यह है कि ट्रैफिक का वो भी था और रास्ते का भी इशू था। जब वो वहां पे पहुंचे हैं, उन्होंने सिनेरियो देखा है तो सिनेरियो कंप्लीटली चेंज था। वो लोग जो है वो उसमें थे, दरिया में थे। दूसरा, उसमें बारिश जो है वो मुसलसल हो रही थी। उसके बाद हम लोगों ने जो डाइविंग टीम हमारी अपनी अलहदा होती है, डिजास्टर टीम हमारी अलहदा है, फिर उस टीम को जो है वो तलब किया गया। वो आए, उन्होंने इस मकाम से वो कितनी देर में आए सर? वो कितनी देर में आए मुझे ये बताएं ना। 12 से 15 किलोमीटर है, आपके पास 10 मिनट बाद कॉल आई होगी, 10 मिनट चलेंगे गुजर गए कॉल आने में, आपने रिसीव कर ली, 15 मिनट में आप पहुंच गए, 25 मिनट हो गए ये, ठीक है। आपको वहां टीम को पता चला कि तो मामला ही नहीं है, तो उन्होंने फिर आप टीम को कॉल की होगी, आ जाओ जी। 10 मिनट में उनको पहुंचना चाहिए था, ठीक है। तब भी आप देख लें तो 35-40 मिनट के अंदर आपकी टीम्स वहां मौजूद होनी चाहिए थी वो मौजूद? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं बात वही कर रहा हूँ आपको कि जब वो टीम पहुंची है उस वक्त तक मुसलसल बारिश भी हो रही थी और पानी का जो फ्लो था वो इनिशियली था कुछ 33,000 क्यूसेक के दरमियान। फिर वो सैलाबी रेला जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई 77,000 के करीब। ऑलमोस्ट ये जो फ्लो था वो डबल था। दूसरा, आप जिस मकाम पे ये वाकया हुआ है उस मकाम को आप देखें तो वहां पे किसी भी किस्म का कोई जो सेकंड स्पॉट था वो नहीं था। इसीलिए हमारी जो टीम थी उन्होंने तकरीबन आधा किलोमीटर पीछे जो है वो लोकल कश्ती होती है जिसको जाली बोलते हैं, उस जाली के दरमियान जो है वो लोग गए, वो बैठे, उन्होंने जो है वो उसमें 3 बंदे जो है वो इनिशियली बचाए। फिर उसके बाद उसने दूसरा अटेम्प्ट किया, उसमें काफी हद तक वो कामयाब हो गया था, उनके करीब चला। अच्छा बिलाल भाई, ये बताएं कि ये आप बताएं एयर एम्बुलेंस क्यों नहीं आई? बिकॉज ऐसी ट्रेजेडी में और ऐसे हादसे में या जो भी चल रहा था ये सिलसिला, उसमें आनी चाहिए थी नहीं? जी बिल्कुल मैडम, इस तरह है कि एयर एम्बुलेंस, एयरलिफ्ट। जी मैडम, इस तरह है, केपी गवर्नमेंट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपना पर्सनल हेली था, वो उन्होंने डेडिकेट कर दिया था रेस्क्यू सर्विसेज के लिए। उसकी मॉडिफिकेशन चल रही थी। अभी जब ये सानेहा आया उस दिन बारिश भी बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना। आपकी इस बात से बिल्कुल यही बात सामने आती है। मुझे बताएं कि अदालत में भी ये हुआ कि ड्रोन थे आपके पास, आपने ड्रोन से कोई लाइफ जैकेट्स फेंकी, कोई बोट्स आपके पास थी? नहीं, ड्रोन जो है वो जी ड्रोन हमारे पास नहीं थे। मैं वही बात कर रहा था हेली वाली, कि हेली में जब ये इशू आया है तो सीएम साहब ने उसी वक्त इसको मजीद मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पहले मेडिकल के लिए इस्तेमाल हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन आपको बिलाल, आपको आइडिया होना चाहिए था, ये मॉनसून सीजन है, टूरिस्ट आएंगे, हादसा हो सकता है। पहाड़ी इलाकों में जो इमरजेंसी आती है उसमें नंबर 1 एयर लिफ्ट की हमेशा रेस्क्यू फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो होंगे, जो लोग फंसेंगे, उनको लिफ्ट ही किया जाए। बिलाल, ऐसा लग रहा है आपकी बात से कि आप कराची की रेस्क्यू 1112 है ना, कि आपको ये नहीं पता कि मैं स्वात में गया था और मुझे वहां के टेरेन का नहीं पता, वहां किस किस्म के हादसे हो सकते हैं, कैसे आपके सेफ्टी जो है प्रोसीजर्स होने चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि कौन से हादसे होंगे। यहाँ तो वही हादसे होंगे जिसमें एयर लिफ्ट चाहिए होगा, मैंडेटरी, और वो नहीं था, और वो रिपेयर हो रहा था, मॉडिफाई हो रहा था। मैडम इस तरह, अच्छा मैडम, कुछ चीजें हैं जो फैक्ट्स और रियलिटी की बेस पे है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको कह सकता हूँ इमोशनल जो है, जिस तरह आप हैं उससे ज्यादा हम लोग हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा, इस तरीके से केपी के अवाम ने इस चीज को लीड किया है, प्रोटेस्ट हुए हैं, रोड्स बंद हुए हैं, सस्पेंशन हुई है, सब कुछ हुआ है। कुछ चीजें जो रियलिटी बेस है, मैं आपको रियलिटी बेस पे बात कर रहा हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब ये वाकया हुआ है, इससे पहले जो हेली था हमारे पास,
वो हेली भी मेडिकल पर्पस के लिए था, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए था। उसको मॉडिफाई अब ये किया जा रहा है कि उसमें स्ट्रिंगर्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। वो जो हेली है वो लेकिन हैरत इसी बात की है ना कि एक हेली था जो अब मॉडिफाई किया जा रहा है, यानी हादसा हुआ अब मॉडिफाई किया जा रहा है। आप पहले क्यों नहीं था? कोई मतलब हैरत अंगेज वैसे ये बात है, बहुत हैरत अंगेज बात है। अब आप बात सुन ले, आप बात सुन ले। मैं आप आपको सर ये बात कह कर रहा रहे हैं, हूं कि मैडम जो नहीं है, पूछ रही, ये सवाल सर का है। दोनों ही कर रहे हैं, हम तो सवालात ही कर रहे हैं। जी जी सर पूछ रहे हैं। हम बचपन से मैडम आपको देखते हुए आ रहे हैं, हम बचपन से आपको देखते हुए आ रहे हैं। मैं बचपन से मैं भी यही हालात देखती हुई आ रही हूँ, यही सवालात करते आ रही है मैडम। मैं इतनी बड़ी हो गई लेकिन ये हालात जू के तू वही हैं, वही मसले हैं, कब ठीक होंगे? 2025 है बिलाल, 2025 देखिए मैं भी आपको देखिए, मैं आपको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इससे कबल भी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और हम लोगों ने ये चैलेंजेस फेस किए हैं, ये चीजें हम लोग देखते रहे हैं। लेकिन इसमें जैसा कि आपको पता है कि यहाँ का जो पानी है, यहाँ का जो फ्लो है, यहाँ की इंटेंसिटी है, वो बिल्कुल चेंज है। अगर हम लोग ये कहें कि जी ये वाकया हुआ, हमने कबल इससे मुश्किल तरीन ऑपरेशंस किए हैं, इसमें हमें सबसे बड़ा इशू आया है। आप उस पानी के फ्लो को चेक करें। दूसरा, जब भी इस किस्म के वाकयात होते हैं उसमें जो है वो ये जो दरिया किनारे होते हैं, पहाड़ों के पत्थर होते हैं, इसमें नोकीले वो जो है वो इसमें आते हैं। दूसरा, अच्छा बिलाल मुझे एक बात बताए, ठीक है सारी बातें मुझे बताए, ऐसा ही वाकया दोबारा हो जाए, एक सेकंड, अगर अगर अल्लाह ना करे ऐसा ही वाकया, एक बात सुने मेरी, ऐसा ही वाकया दोबारा अगर हो जाए बिल्कुल सेम, अल्लाह ना करे, क्या करेंगे आप फौरी तौर पे? अब क्या क्या चीजें ऐसी जो करेंगे आप? अच्छा, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि उस दिन सुबह 7 बजे से हमारा मुख्तलिफ इसी स्वात में मुख्तलिफ जगहों पे सैलाब में जो फंसे हुए लोग थे उनका ऑपरेशन चल रहा था और उसमें तकरीबन हम लोगों ने 130 के करीब लोगों को बचाया था। दूसरी बात, अब इस पे हम लोग आते हैं तो इस हवाले से हम लोगों ने अब मैकेनिज्म जो बनाए हैं उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब, वज़ीर आला साहब, उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी, उसको हम लोगों ने 3-4 फेजेज में या 3-4 चीजों में कन्वर्ट किया है। सबसे पहले तो यह है कि हम लोग जो हमारी लोकल कम्युनिटीज है उनको ऑन बोर्ड लिया है, उसके साथ अल खिदमत, सिविल डिफेंस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इनका अपना एक जो है वो सेल कायम किया है। जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं हर एक जिले में जो है वो एक एडीसी रिलीफ है, उसके ऑफिस में एक सेल कायम होगा, वहां पे ये तमाम रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे। इस किस्म की कोई भी इमरजेंसी होगी तो ये सारे ये दरिया का इतना, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने एनालाइज किया सूरत हाल को, दरिया का इतना ही फ्लो हो, इतने ही लोग ऐसे बिल्कुल सेम रेप्लिकेट करें, तो क्या इकदाम करेंगे? आपने क्या सोचा, जहन में क्या है? मुझे तो लगता है सिमुलेशंस होनी चाहिए, उसमें जाके इसको रिक्रिएट करें सिचुएशन को, कि क्या करेंगे? अल्लाह ना करे मैडम ऐसा आए। फिर जैसा मैं आपको कह रहा था कि पहले एक ये हम लोगों ने स्टार्ट किया, दूसरा उसके बाद हम लोगों ने मॉक एक्सरसाइजेस स्टार्ट किए हैं। जो हमारे पास इक्विपमेंट्स है इसी दरियाओं में जो है वो हम लोग जो हमारे पास कश्तियां वगैरह हैं, लोकल लोग हैं, उनको जो है वो हम लोग इकट्ठा करके यहाँ पे मॉक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। ड्राउन जो है वो हम लोगों ने खरीद लिए हैं। इसी तरह जो हेली की बात आप कर रही हैं, वो हेली में मॉडिफिकेशन चल रही है, इंशाल्लाह उम्मीद है जी। अच्छा बिलाल साहब, एक और चीज आपने शुरू में बोली थी, वो मुझे वो अटक गई है। आपने कहा कि जब कॉल किया गया, ठीक है ना, जब आप कोई इमरजेंसी कॉल करते हैं कहीं, तो देखिए जो कॉल करने वाला है उसके तो हवास काबू में नहीं होंगे। दुनिया भर में जो लोग कॉल रिसीव करते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि जी रिलैक्स, जी बिल्कुल, क्या आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अच्छा किस किस्म की किस नौयत की जो है इमरजेंसी है, कितने लोग हैं, क्या हुआ, उनसे कुछ देर तो सवाल जवाब किए जाते हैं। उसके बाद ये तयन किया जाता है कि इमरजेंसी किस तरह की है और उसी वक्त हेल्प अरेंज की जाती है। आपने कहा कि उनको बताया गलत कम्युनिकेट कुछ किया गया, वो टीम कुछ और पहुंची। तो आपके लोग क्या ट्रेंड नहीं है कि उनसे सवाल किस किस्म के करने चाहिए ताकि नौयत का पता चले कि हादसा इमरजेंसी किस नौयत का है? जी बिल्कुल मैडम, हमारे जितने भी एहलकार जो भर्ती होते हैं, जिस वक्त जब उनका प्रोसेस शुरू होता है तो सबसे पहले वो 6 महीने की उनकी तरबियत होती है। उस तरबियत के बाद फिर कैसे उन्होंने गलत समझा, अगर दे वो ट्रेन, बिलाल ये पता है? बिल्कुल मैडम, उनका तो काम ही यही है। 2 चीजें। चले बस उम्मीद करते हैं बिलाल, इस वक्त तो आपके पास जाहिर है हम भी ये देख रहे हैं कि आप थोड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में हैं,
جواب آپ کے پاس نہیں ہے اور انسانی جانوں کا معاملہ ہے. آپ ہمارے سبھی ظاہر دکھ کا اظہار کریں. بہت شکریہ. نیکسٹ ٹائم ایسا نہ ہو اور آپ کے استعداد بہتر ہو, آپ کے پاس اکوپمنٹس ہوں.